Another life ends in darkness in the city of dreams. 25-year-old actor Pratyusha Banerjee, best known for her role as Anandi in Balika Vadhu, allegedly committed suicide on Friday evening. Her parents have now reached Mumbai and will be reaching the hospital to complete formalities before her post-mortem. The popular actor reportedly hung herself from a ceiling fan at her residence last evening. According to reports, Pratyusha's boyfriend Rahul found her hanging. He rushed her to Kokilaben Hospital where she was pronounced dead. The Mumbai police has questioned Pratyusha's boyfriend, her friends and family. The police searched Pratyusha's Goregaon residence where she allegedly hung herself from a ceiling fan. They also are looking into her call records. No suicide note has been recovered so far. Her body has now been shifted to Siddharth Hospital for post-mortem. कोऑपरेट कीजिए, अभी उनको ऐसे मत घेरिएगा क्योंकि उनकी मेंटल स्टेट नहीं है बिल्कुल भी। उनको पहले अपनी बेटी को देखने दीजिए, फिर आप लोग एक बाय एक उनसे सवाल कर लेना। थैंक यू। वो यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किसी हालत में नहीं हो बातचीत करने के। जो उनके करीबी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उनको संभाले। वो सिर्फ रोए जा रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ से वो सीधा जाने वाले हैं अस्पताल में। अस्पताल में जाने के बाद ही वो जाके वहाँ पर बॉडी देखेंगे। उनके पिता हैं, उनसे हम कोशिश की बात करने की। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, अभी आंटी कुछ बोलना चाहेंगे? आप कुछ बोलना चाहेंगे आंटी? तो यहाँ पे आप साफ देख रहे हैं, उनका कहना है कि अभी वो बोलने की हालत में नहीं है। और हम समझ भी सकते हैं क्योंकि जिस घड़ी से वो गुजर रहे हैं, कोई मामूली बात नहीं होती अपनी जवान बेटी को खोना, और वो भी जो कि अपनी बुलंदियों पर थी, एक बड़ी अभिनेत्री थी, एक बड़ा सितारा थी। और ऐसी हालत में अगर माँ बाप आते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जवान बेटी ने खुदकुशी कर ली है, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती है। यहाँ पर माँ बाप पहुँच चुके हैं। यहाँ से सीधे वो सिद्धार्थ हॉस्पिटल जाएंगे, अपनी बेटी को देखेंगे, बेटी का शव देखेंगे, और वहाँ से वो पुलिस स्टेशन जाएंगे जहाँ से उनकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होगी। और उसके बाद ही पता चलेगा कि जब पुलिस उनका बयान दर्ज करेगी कि क्या हाल फिलहाल में प्रत्युषा ने इस बारे में जानकारी दी थी कि राहुल ने उनके साथ में कोई चीटिंग की है, राहुल के बारे में क्या कुछ बताया हुआ था। इन सारी जानकारियों को निकालने के बाद में पुलिस आगे कदम बढ़ाएगी कि क्या इस मामले में ADR ही रहेगा या फिर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला दर्ज होगा। All right, so the police hasn't registered any case against anyone till now. No one has been named in any kind of FIR. Initial investigations are underway. We do know that the police has questioned Pratyusha's friends and family, even her boyfriend. Let's get a word from Anupama, who's with us live from Mumbai. Anupama, the film industry expressing shock and anguish at Pratyusha's death. Yes, we spoke to some of Pratyusha's friends and we have been in touch with them since yesterday night. Sara Khan, Pooja Bose, Ejaz Khan, they all are very close friends of Pratyusha, and they just have one thing to say, that Pratyusha was a very strong girl and she cannot commit suicide. However, this is just a speculation, and nothing is confirmed. So right now, Pratyusha's friends have started coming in Siddharth Hospital, and Pratyusha's parents are expected here anytime because they have left the airport around 45 minutes back, and they are expected anytime here. And Pratyusha's friends are also waiting for her parents. And after that, her parents will go to the police station, and the rest formalities will happen. Right, and Anupama, how is you telling us that her friends and family, of course, are extremely surprised? What do we know about Pratyusha's career? We do know that she started about 5 years ago when she made her debut in the industry with the role of Anandi in Balika Vadhu. Can you repeat the question? I want to know, how is it that the industry is reacting to her career, considering that she had barely started about 5 years ago with that role of Anandi in Balika Vadhu? All right, let's get a word from Siddharth Hussain, senior editor, who's with us on the phone line. Siddharth, an extremely sad end to a young bright star who was actually one of the names to reckon with in the Indian television industry. This has come as a huge shock to her friends and family. Of course, her career had seen a meteoric rise since she debuted in Balika Vadhu some 5 years ago. जी हाँ, ये बहुत ही दुखद है, और इंडस्ट्री में जिस तरीके से इस खबर को लिया जा रहा है, लोग बहुत चौंके हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस इंडस्ट्री में, अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में देखा गया है कि
बहुत प्रेशर रहता है, और खासकर प्रेशर इस बात का नहीं है कि आपके पास काम कितना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ऐसा प्रेशर भी रहा है कि किसी और के पास ज्यादा काम है, और साथ में पर्सनल लाइफ, तो वो कई चीजें मिल करके जो है वो उस प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। राइट एंड सिद्धार्थ, जैसे आप कह रहे हैं काफ़ी प्रेशर रहता है टीवी स्टार्स पे, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्री में। इनफैक्ट कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि टीवी स्टार्स जो है कम से कम 50 से 60 घंटे हर हफ्ते काम किया करते हैं। जी हाँ, और यूजली जो है वो एक शिफ्ट जो है वो तकरीबन 9 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट का कोई अंदाजा नहीं होता है। और 31 दिन मान लीजिए, अगर आप 31 दिन काम कर रहे हैं, परिवार से आपका कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, आपका ज्यादातर वक्त अपने को एक्टर्स के साथ बीत रहा है, वो भी सेट्स पर, और उसमें डायलॉग्स याद करने का भी प्रेशर होता है, साथ में पर्सनल लाइफ का प्रेशर होता है। तो वो कई चीजें जो हैं वो मिला जुला के, अगर आप जो है जरा सा भी किसी भी मोमेंट पे अगर कमजोर पड़ गए तो वो मोमेंट बड़ा खतरनाक हो सकता है। जैसे यहाँ पे भी ये कहा जा रहा है प्रत्युषा के लिए कि बहुत मजबूत मिजाज की वो इंसान थी, मगर ये हो सकता है कि कभी किसी एक क्षण जो है वो उस पर आदमी जो है वो इंसान जो है वो कमजोर पड़ जाए, तो वो कोई गलत कदम उठा सकता है, जैसा कि यहाँ हुआ। पोस्टमार्टम के बाद तय होगा कि आखिर असली माजरा क्या है। एब्सोल्युटली। एंड सिद्धार्थ, आप हमको प्रत्युषा के करियर के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? 6 साल पहले जमशेदपुर से आई थी, आनंदी के रोल में डेब्यू किया था, उसके बाद से लेके अब तक कौन से शोज में इन्होंने फीचर किया है, और क्या व्यूअर्स रिस्पॉन्स रहा है इनके परफॉर्मेंस की तरफ? देखिए, जब इन्होंने आनंदी का किरदार निभाया और जब ये बालिका वधू सीरियल में इनकी कास्टिंग हुई, वो सीरियल अपनी चरम सीमा पर था, और खासकर अविका गौर जो चाइल्ड एक्टर थी वो उस रोल को कर रही थी, और किरदार को बड़ा होना था। तो किरदार बड़ा होना था, और उस वक्त लोगों की जो क्यूरियोसिटी थी वो भी बहुत ज्यादा थी उस किरदार को लेकर के। और ऐसे में आनंदी को जब कास्ट किया गया, प्रत्युषा को जब कास्ट किया गया, तो उनकी हाइप बहुत जबरदस्त थी, और लोगों ने उनको बाकायदा एक्सेप्ट किया, और खासकर उनकी मुस्कुराहट जो थी वो उसको बहुत पसंद किया गया लोगों ने। वो एक इनोसेंस थी जो उनके लिए काम आई। हालांकि वो नॉन एक्टर बैकग्राउंड की थी, कभी उन्होंने उसके पहले एक्टिंग नहीं की थी, मगर धीरे धीरे उन्होंने सीखा उन चीजों को, जिससे जाहिर होता है कि उनकी विल बड़ी मजबूत थी, और फिर जो है वो जो एक्सेप्टेंस थी वो बहुत गजब की थी। लेकिन उसके बाद टेलीविजन में खासकर ये देखा गया है कि जो एक्सेप्टेंस है आपको जितनी तरीके से जितनी जल्दी मिलती है, उतनी जल्दी रिजेक्शन भी मिलता है। सीरियल एक अखबार की तरह है, मेरा मानना है कि आप उस दिन आप सुर्खियों में हैं, और 1 साल सीरियल चला, उसके बाद जब आपका सीरियल खत्म होता है तो आप वापस बैक टू स्क्वायर वन पहुंच जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो रोल उन्हें मिला था उसके बाद उस किस्म के रोल उनको नहीं मिले, तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वो प्रेशर भी रहा होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि इनिशियली शी स्टार्टेड हर करियर ऑन अ हाई, बट उसके बाद इतनी सक्सेस नहीं मिली। काफी रियलिटी टीवी शोज में भी इन्होंने फीचर किया है, अपने बॉयफ्रेंड राहुल के साथ भी। या रियलिटी फीचर जो होता है वो यूजली आदमी अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पर जो लोग, मेरा कई बार एक्टर्स से इंटरेक्शन होता है, तो उस लिहाज से मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कई दफा ऐसा होता है कि यूजली रियलिटी शोज में वो एक्टर्स आते हैं जिनके पास उतना काम नहीं होता है जितना औरों के पास होता है। ज्यादातर आप रियलिटी शोज देख लें, उसमें ज्यादातर एक्टर्स वो होंगे जो अपना जो पीक है वो पार कर चुके होते हैं, और या तो बहुत वक्त से बैठे हुए हैं, या फिर वो उन वजहों से सुर्खियों में रहते हैं जो किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी है। इसीलिए बिग बॉस जैसे शोज हों या फिर पावर कपल जैसे शोज हों, इसमें ज्यादातर उन लोगों को अगर रखा जाता है कहीं ना कहीं जिनका टेम्परामेंट में थोड़ा सा लड़ाई का मादा हो, क्योंकि जब लड़ाई होगी टेलीविजन शो पे जब आप देखेंगे तो उसमें व्यूअर को उत्सुकता पैदा होती है और वो उसको एंटरटेनमेंट की तरह लेता है। Absolutely. Siddharth, stay on with us. We're also being joined by Vidya. We're also getting some breaking news. Rahul Raj Singh, Pratyusha's boyfriend, has been detained by the police and he's being questioned at an undisclosed location. We have Vidya on the phone line. Vidya, what more details can you share with us? What we have gotten to know is that although Mumbai police has taken down his statement, but also wanted to cross-question him on certain other aspects that they had gotten to know recently since last night. And that's one of the reasons why he's been picked up again. He's been taken to an undisclosed location, not at the police station right now, and definitely being questioned, while he's being in the car, while they are taking him to the location. Questions are still being put to him. They are asking him detailed questions on certain aspects that they have just cross-checked with other people. Certainly it pertains to the fact that, the fact that, what had really gone on, and the conversations that they had.
before Right. he had found her, before he had left her alone in the house. So certainly all these questions are still being put forth to him, and we'll really get to know whether something substantial does come out of this entire conversation that they're having with All right. Rahul Raj at this moment. Vidya, stay on with us. The big update on the story is that Rahul Raj Singh, Pratyusha's boyfriend, has been detained by the police. He's being questioned at an undisclosed location. We have entertainment editor Siddharth Hussain also with us on the phone line. Siddharth, Rahul Raj Singh के बारे में क्या जानते हैं हम? क्या वो टीवी के बड़े स्टार थे? उनको पावर कपल में देखा गया है प्रत्युषा के साथ, पर उसके अलावा क्या उनका अपना भी कोई करियर था टीवी में? देखिए, मेरी राहुल राज के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि जो एक्टर या एक्ट्रेस जिनके अक्सर ऐसा देखा गया है उनकी जिनसे रिलेशनशिप होती है वो भी फेमस हो जाते हैं। और खासकर राहुल राज का सिर्फ अचीवमेंट अगर देखें तो ये था, वो जरूर एक ठीक ठाक घर के लड़के बताए जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ रसूख के हिसाब से, पैसे के हिसाब से। मगर ये जरूर देखा गया है कि राहुल राज की पहचान सिर्फ यही थी कि वो प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड थे, और उन्हीं की वजह से उनको टीवी में भी जो है वो एक ब्रेक मिला पावर कपल के जरिए। एंड सिद्धार्थ, पावर कपल में इन दोनों ने जब एक साथ फीचर किया था तो क्या रिस्पांस रहा था इनकी जोड़ी की तरफ? देखिए, उसमें बहुत सारी जोड़ियां थी। हाँ, इनको ये इम्पोर्टेंस जरूर मिली थी क्योंकि सबसे छोटी जोड़ी थी ये, तो एक क्यूट कपल, यंग कपल, बबली, दोनों हंसी मजाक करते थे। और जब देखिए, जब टीवी पर होते हैं आप, कितना भी रियलिटी शो हम बोल लें, मगर आप कहीं ना कहीं एक नकाब तो ओढ़े होते हैं, और वो उससे ये अंदाजा कहना बड़ा मुश्किल है कि इनकी असल में रिलेशनशिप क्या थी। अब जैसे सुनने में आ रहा, जो हमारे अदर जो और करस्पॉन्डेंट है उनका बताना है कि घर में अक्सर झगड़े होते थे। वॉचमैन का कहना है कि कई बार जो है लड़ाइयों की आवाजें आई हैं, तो उससे ये भी जाहिर होता है अगर कपल यंग है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचकानी हरकतें भी की हैं, जिस वजह से जो लड़ाई की जो झगड़े हैं उनकी खबरें बाहर आई, तो उससे जाहिर होता है कि पेशेंस की कमी दोनों में कहीं ना कहीं थी। Obviously, Siddharth, हमारे साथ आप बने रहिए. We also have Vidya on the phone line with us. Vidya giving us that big update that Rahul Raj Singh, Pratyusha's boyfriend, has been detained and is being questioned at an undisclosed location. Vidya, we're also being told that Pratyusha's parents have arrived in Mumbai and they will be completing formalities for her post-mortem. Well, it certainly is. They have arrived. They reached the Mumbai airport around 10:30 and subsequently reached the Siddharth Hospital, which is quite nearby to the residence where Pratyusha used to stay and where her body was also found. And in fact, at the hospital, they will be completing the entire procedure, giving their go-ahead for the postmortem to be conducted, where the postmortem will be, completed in due process of time. And after that, the entire, the body will be handed over to the family for them to complete the last rites wherever they want to do. Right, and Vidya, of course, the police will also be questioning Pratyusha's friends and neighbors, people who live close by or people who work with her on sets. Well, they have already been doing that. They have taken down Rahul Raj's statement earlier as well, and after that they spoke to a couple of other people as well. They are also trying to get some material evidence like the CCTV cameras that have been positioned outside Pratyusha's residence. So all this entire evidence and everything that they are taking in will be corroborated with what Rahul Raj has been saying. It's not that Rahul Raj is the main suspect that they have. Certainly the issue is that he was the person who had seen Rahul Raj. Rahul Raj was the last person to have seen Pratyusha and who had taken her to the hospital. So certainly, these things need to be corroborated with other things to know that whether he's saying the truth or he's lying. So that's something that Mumbai Police really needs to do before they can really come to a conclusion as to what has really been the entire incidences that had happened before the drastic step that Pratyusha had taken. Alright, so the police is questioning everyone involved, Pratyusha's friends, family, boyfriend. They're also looking at her call records, examining all possible angles. Also trying to find out whether this was actually a suicide or perhaps a murder. The post-mortem has still not been concluded till now. In fact, her parents have just arrived from Jamshedpur and given a go-ahead, completed formalities for the procedure. Siddharth Hussain and Vidya, stay on with us. Let's listen into some reactions that we're getting in from the Indian television industry. वजह होगी ना कि एक लड़की पागल तो नहीं है कि वो ऐसा कदम उठाएगी।
तो अगर कुछ हुआ भी है तो उसकी कोई वजह है, वो हम वजह जानेंगे। और ये भी है कि अगर खुदकुशी भी की है तो जिसको रहना चाहिए था उसके साथ था नहीं, वो वहाँ से चले गया, उसको तो रहना चाहिए था। हम दोस्त होके पूरी रात सो नहीं पाए हैं, ये सोच सोच के हम मर रहे। और वो अगर बॉयफ्रेंड है, अपने आप को बॉयफ्रेंड कहता है, साथ रहता है, वो क्लास छोड़ के कैसे जा सकता है वहाँ से, समझ में नहीं आया। एक बाहर बैठ के चिप्स खा रहा था।